अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं आज की वीडियो में आपको दुबई एग्ज़िबिशन सेंटर में लेकर आया हूँ, जहाँ पे एआई एवरीथिंग के हवाले से बहुत सी टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस हो रही हैं। तो आपको अंदर लेके चलता हूँ, दिखाऊँगा कि अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो एआई के थ्रू जो है वो हो रही हैं, और बहुत सी चीज़ें, बहुत सी कंपनीज यहाँ पे आई हैं। तो आपको भी अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं तमाम अंदर के मनाजर। My name is Ahmad. I'm from Lenovo. I'm data center solution architect. Here we are showcasing different kinds of servers. This is a completely water cooled server. So this server use normal water to cool the entire server. Normal water in the sense tap water. It will take normal tap water with 45 degree of temperature, warm water. These are the inlet and this is the outlet. This is like two node server. This is one node and this is two node. Each node is having two CPUs, and these are the memory DIMM slots, and this is for the storage. So normally when we take the water, it will go through these pipelines. These are the copper pipelines which will cool the entire systems, both CPUs, hard disk, and even the memory, and it will come out through this water outlet. And for this kind of servers, we need a CD unit. CD unit means that normal CD unit which will be mounted on the rack, and you need to connect that CD unit with the tap water. So once the water comes from the tap water to the CD unit, it will warm the water to 245 degree. Then it will push through this inlet to the entire server. Once it is cool the server, the water temperature will be almost like 65 degree. It will come out through this water outlet pipe. So either you can use this hot water for any other purpose like cooling the pool or cool water for the tap water or something like that, or you can use this kind of heat exchanger to heat and building during time of winter. So that is the specialty of this servers, and we are the only one vendor who's using normal tap water. There are other vendors who are using liquid cooling. That means they are using the glycol for the cooling and their servers. And this is our edge server. Edge server means like you can mount it, these servers on the wall. No need of data centers. You can mount it anywhere, and it is all military spec. That means it is water resistant, fire resistant, and it can withstand up to 55-degree temperature, minus 20-degree temperature. Also, this server supports both Wi-Fi, 5G LTE, and other network connectivities. This is a small version of these edge servers. Even same like this one, it will support
both Wi-Fi, LTE, and other connectivity. Even you can mount it on the wall, and this is highly secure. No one can open it and take the data because it's completely encrypted. And this is the back end of the water cooled servers. So these are the CD units to cool the servers. This is how it will work. The water will flow from here. It will go through the servers, and it will come out from this outlet. I think this is a very unique technology that you can introduce. Yeah, we have been using this technology for the past 12 years, and this server is the fifth generation servers So mostly industry they can use this for kind of especially for the supercompute. So in 500 in the world, about 500 supercomputers. In that, the top number one supercomputers is by water cooled in our servers. and the cost of this server. It depends upon the configurations, like spec, how many CPUs are we using, how many cores are we using, and the memory DIMM, also the internal storage. So your company you can also support the configuration and all the. Yeah, it completely upon the requirements. We can scale up to any configurations. Thank you so much for your. You're welcome. You're from Pakistan? Yes, yes. You have to remove from this one. Please help us with the touch. Are you from the partner side or customer? How is the partner? Remove from here. वालेकुम रहमतुल्लाह जी। मेरा नाम निशान कमाल सिद्दीकी है। बेसिकली सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ लेनोवो के अंदर। तो मैं आपको इसके अंदर जो नई टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, बेसिकली होता क्या है सर्वर बिजनेस के अंदर, जो ट्रेडिशनल सर्वर्स होते हैं उसके अंदर आपके पास प्रोसेसर है, जीपीयू और मेमोरी है। जब वो काम करते हैं और जब आप ऑपरेशनल मेथड के अंदर होते हैं तो उसमें से हीट जनरेट होती है। हीट जनरेशन की वजह से हम सर्वर्स के अंदर फैंस लगाते हैं ताकि वो हीट उसकी जो है डिसिपेट हो सके, और मेनली जो हीट होती है वो जाती है डेटा सेंटर के अंदर। अच्छा जी, डेटा सेंटर के अंदर जब हीट जाती है तो हमें डेटा सेंटर्स को कूल डाउन करना पड़ता है विद एयर कंडीशन, यानी 20 डिग्री 22 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डेटा सेंटर को रखना है ताकि सर्वर इतना हीटअप ना हो जाए कि फिर वो फंक्शन करना छोड़ दे। अब जिस जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, स्पेशली जीपीयू से रिलेटेड, आपके पास जो नॉर्मल जीपीयूज होते थे 600 वॉट 700 वॉट्स, अब जो नए जनरेशन के जीपीयूज हैं वो 1200 वॉट्स तक चले गए। तो अब एक सर्वर के अंदर अगर 1200 वॉट्स के 8 जीपीयू लगे हुए होंगे तो हीट इतनी ज़्यादा जनरेट होगी कि फैंस के लिए पॉसिबल नहीं होगा उसको कूल डाउन करना। उसके लिए तो बेस्ट मेथडोलॉजी जो है वो ये है कि आप वाटर अप्लाई करें, ठीक है ना। अब वाटर कैसे करेंगे? तो ये जो सर्वर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इसके अंदर कॉपर पाइप्स है, ठीक है जी। यहाँ से इनलेट वाटर जाएगा और ये दो हिस्सों के अंदर ट्रांसफर होकर ये जितने कॉपर पाइप्स हैं, यहाँ प्रोसेसर है, ये मेमोरी है, यहाँ पे आपकी हार्ड ड्राइव्स हो गए, आपके कनेक्टर्स हो गए, ये कॉपर पाइप जो है वाटर को लेके जाएगा और यहाँ से आउटलेट जाएगा। इसकी वजह से होता क्या है कि जो हीट जनरेट हो रही थी 97% ऑफ द हीट ट्रांसफर हो जाएगी वाटर के अंदर। अच्छा, हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें वाटर टेम्परेचर चाहिए 15 टू 45 डिग्री सेल्सियस। हम 45 डिग्री सेल्सियस पे भी काम करते हैं, बेसिकली वार्म वाटर पे। 45 डिग्री सेल्सियस अंदर जाएगा, उसको कूल डाउन करके जो बाहर आएगा वो 65 डिग्री होगा। 65 डिग्री को आपको वापस कूल डाउन करने के लिए एक चिलर चाहिए होगा बाहर, जो कि एज अ रेफ्रिजरेटर है। बेसिकली वो कुछ भी नहीं है, वाटर जाएगा, उसको कूल डाउन करेगा और वापस आएगा। ये एक लूप है और इसमें कंटिन्यूसली वाटर नहीं चाहिए होता, एक लूप है जो सर्कुलेट करता रहेगा। सबका मेन फायदा ये है कि इस पूरे सर्वर के अंदर कोई फैन नहीं है, इवन मैक्सिमम परफॉर्मेंस के ऊपर भी आपकी कोई साउंड नहीं होगी उसके अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक नॉर्मल रूम के अंदर इस सर्वर को रख सकते हैं। आपको नॉर्मल रूम चाहिए, एयर कंडीशन नहीं चाहिए। ऐसे इलाकों के अंदर जो ठंडे इलाके हैं, फॉर एग्जांपल हमारा एक क्लस्टर चल रहा है अंकारा के अंदर, जो कि ऑब्वियसली विंटर में तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्दी होती है। उस डेटा सेंटर के अंदर एयर कंडीशन नहीं है, उसमें ये सारे क्लस्टर लगे हुए हैं। और ऐसे दो क्लस्टर्स टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स के अंदर भी हैं जो हमने डिज़ाइन किए। तो उसके अंदर डेटा सेंटर के अंदर आपको एयर कंडीशन नहीं चाहिए, और ये वो टेक्नोलॉजी है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते फ्यूचर के अंदर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन पैदा जी। होता है, बहुत से मेरे देखने वाले उनके भी माइंड में कुछ क्वेश्चन आते होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे कमेंट यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन था, जिस तरह मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले पूछा कि अगर वाटर यहाँ पे जाएगा इसके अंदर तो हीट भी होगा, उसका क्या सोल्यूशन है? क्या वो जब वाटर गर्म होगा तो उसको किस तरह से कूल करेगा और किस तरह से हमारा जो सिस्टम है उसको कोई भी इसको डैमेज बिल्कुल सही है। देखिए, वाटर जाएगा, जो बाहर आएगा वाटर, पहले मैंने आपको बताया ना, उसके लिए आपको एक चिलर चाहिए होगा, यूजली जो डेटा सेंटर के अंदर लगा हुआ होता है एयर कंडीशन के लिए। चिलर कुछ भी नहीं है, आसान उर्दू के अंदर एक रेफ्रिजरेटर है वो। उसमें पानी यहाँ से जाएगा, वो उसको कूल डाउन करेगा, 40-45 डिग्री सेल्सियस पे वापस कूल डाउन करके वापस उसके अंदर लूप लेकर आएगा, ये चलता रहेगा। दूसरी बात ये है कि अगर वाटर लीक हो जाता है फिर क्या होता है? बेसिकली इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। सेंसर्स लगे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि इवन जब आप इसको पुल आउट भी करेंगे ना, तो कनेक्शंस ऐसे हैं कि वो ड्रिपलेस कनेक्टर्स है, वाटर आपका लीकेज नहीं होगा। इन केस कभी लीक भी हुआ, उसमें सेंसर लगे होंगे, वो सर्वर को शट डाउन हो कर देगा। ये सेम ऐसा ही है कि अगर डेटा सेंटर के अंदर फैन, सर्वर में फैन खराब हो जाए या एयर कंडीशन काम करना बंद कर दे और हीट अप होने लगे, तो सर्वर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। यही काम इसके अंदर है कि अगर कोई लीकेज हुआ, सेंसर्स हैं वो पहले ही अलर्ट कर देगा और वो उसको ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है सर, हो गया, ये ले। But a part of ATRC, like bunch of yes. Okay, focus you on drones. Some project leader drones. What we are organizing is the first event of an autonomous drone challenge with a $1 million prize pool. The event will happen in Abu Dhabi, specifically in ADNEC, in the 11 and 12 of April 2025. And the event will be incredible. We have AI teams, they basically program this drone, it will be completely autonomous. We have FPV pilots, and we are organizing multiple challenges. So we have the AI challenge based on speed race. We have then human FPV challenge where we define the top 4 human pilots, and then we will do the humans versus AI challenge, which is the top 4 AI teams will compete with the top 4 human pilots. On top of that, we also organize a grand challenge, another like special challenge. It will be, I cannot disclose yet because not even the team knows, but it will be fascinating. Potentially, drones might also crash. It's also part of the research. And so yeah, let's get ready. We have $1 million prize pool there, and we just wait for you to join. Thank you.